What difficulties or problems do you face in maintaining? सी मैम, ये न्यू सिस्टम है, एसपीसी पे नहीं है मैम, मिला है? एसपीसी पे नहीं है। All right, participants, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Anybody? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Participants, Good morning, is there sir. anybody who can help us out for नसीम मैडम पीपीटी? कोई है जिसको मैं पीपीटी भेज दूं नसीम मैडम की और वो अपने यहाँ से प्रेजेंट कर दे और नसीम मैडम क्लास लेती रहेंगी और आप प्रेजेंट कर देंगे? कोई है? जो ये हेल्प करे हमारी? कैसे हो? विजय सर, में क्या डिस्प्ले करना है पीपीटी हाँ को? हाँ वीरेंद्र सर, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करना है। नसीम मैडम क्लास लेती रहेंगी, आप उसको उनके हिसाब से आगे बढ़ाते रहिएगा। ओके ओके, स्क्रीन भेज शेयर दीजिए। कर, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करना है। ओके, भेज दीजिए, मुझे भेज वीरेंद्र दीजिए। सर, आपको भेज दूं मैं? ठीक है, भेज दीजिए। I'll just do. Thank you. ओके। Thank you very much for helping. सर कुछ और वीडियो जो बने हैं वो भी हम लोग को भेज देते। I'll do that, don't worry. ठीक है सर। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ना? हाँ हाँ, सब्सक्राइब्ड है। तो मैं उस पर डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर। सर पीपीटीज भी प्लीज। और पॉसिबल हो तो पीपीटी भी भेज दीजिएगा सर। ओके ओके। ये वीरेंद्र सर, ओके जी सर। पीडीएफ है मैडम की। पीडीएफ? हाँ, मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके ओके। वीरेंद्र कुमार, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है। Dear participants, today we are going to discuss a very important topic that is related to your subject concerned and that explain how we go forward during our educational process. So every teacher is concerned with this because curriculum designing is needed and important and urgent topic to know about it to every teacher. Without curriculum we can't move.
अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? So, in this topic, we would like to cover the meaning of curriculum along with principles of curriculum, and we would also like to know that what types of curriculum designing is familiar in present era, specifically when we are knowing about the outcome based education. You have heard this name in NEP 2020, outcome based education. Outcome based education means that what kind of changes do you want to see, to observe in the behavior of the teacher, in the behavior of your students. So first, know that what is curriculum. The term curriculum has been derived from a Latin word curre, C-U-R-R-E, curre. Curre means a runway, एक दौड़ने का रास्ता. Say for example, as a horse starts to run at a point and continuing it till he reaches at a point, that's say the end point of the race. Similarly, in case of curriculum, a teacher starts running from a point. He runs and reaches at a point that declares the result also. So the first point is known as objectives. The first point, that is start of our race, start of our run, is known as objectives, and the end point of this cycle is known as evaluation. So what we have to do, we have to cover the path from objectives to evaluation. That is curriculum. Okay. So the term curriculum, जी बताइए. नसीम मैम हो गई डिस्प्ले, यू कैन सी इट. Someone, I don't know to whom you have assigned. Virendra sir is there. He is just displaying the PPT, your PPT. Okay, thank you so much. Thank You just tell him about what topic you are going to start. He will do the changes. Okay. Yes, I will instruct. I will direct, no problem. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, Virendra sir. Thank you. So what happens when we know about the term in general? It is a runway. एक दौड़ने का रास्ता है जो एक टीचर उद्देश्यों से शुरू करके मूल्यांकन पर समाप्त कर देता है. अब चूंकि हर शब्द को की विवेचना हर शिक्षक और जो हमारे एकेडमिशियंस होते हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से टर्म की विवेचना करते हैं. Everyone has different kind of views, different kind of explanation for every word. Say for example, for curriculum, few says that it is all the activities that the teacher performs inside the classroom. But few decline this definition, they decline this interpretation. They say when we ask about the curriculum, it means all the activities, all the interaction of a student inside the school or inside the college that takes place in the campus or in the premises of the college. This interaction may be with the teacher, this interaction may be with the peer group, and this interaction may be with the other teachers, those who are not teaching. It may be interaction with the non-teaching staff, where the kind of formalities, that is admission form submission and ID card formation, so many formalities we have to concern there. So these all मैम आवाज नहीं आ रही है. Ma'am, there's a lot of disturbance from your side.
Yes, ma'am. Disturbance. डिस्टरबेंस है अब? नहीं मैम, नो मैम, अभी ठीक है। अभी ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ओके। सो देखिए, इसको आप देखिए, इसमें कार्टर वी गुड की जो डेफिनेशन है, कार्टर वी गुड इज अ having editor of a dictionary, that is dictionary of education. He defines the term as that when a student passes through any course and after passing through all the steps of one course, when he clarify or when he declare that he is able to transfer the next class or promoted to the next class, नोन एज करिकुलम। यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम जो स्कूल में चलाते हैं या कॉलेज में चलाते हैं, जिसको चलाने के बाद हम कहते हैं कि बच्चे ने इसको पढ़ लिया और ये क्वालिफाई कर लिया, इसको आप प्रमोशन आप अगली क्लास में दे दीजिए। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, वो डिक्लेरेशन है एक तरीके का कि आप बच्चे को आगे की क्लास में शिफ्ट कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। शिफ्ट से मतलब प्रमोट कर दीजिए। But the definition of Carter B. Good is only present a narrow sense of curriculum that is related to curriculum to declare certification for the students. लेकिन ये चीज करिकुलम नहीं है। समर जी प्लीज आप अपना बंद करिए। समर जी प्लीज, समर आप अपना ये बंद करिए ऑडियो। यस, थैंक यू सो मच। सो कार्टर वी गुड की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ एक ही पक्ष को प्रस्तुत करती है। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष है पाठ्यक्रम का नैरो सेंस है, पाठ्यक्रम का ये नैरो सेंस है। लेकिन हम जो दूसरे डेफिनेशन देखते हैं क्रो एंड क्रो की, वो डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव टर्म को प्रेजेंट करती है, जो ये बताती है कि हम curriculum is a kind of tool that helps to develop emotional or the physical, spiritual, moral development of the student. So this definition covers so many aspects of curriculum. Say for example mental, यानी mental और emotional और moral, ethical, physical also. तो वास्तव में करिकुलम पाठ्यक्रम एक ऐसा सशक्त साधन शिक्षक के हाथ में है जो हमारे बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर देता है। और उस संपूर्ण विकास के अंदर ही ये चारों पक्ष आ जाते हैं, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक और अन्य प्रकार के जो हमारे बच्चे के फिजिकल या भौतिक शारीरिक रूप से संबंध रखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इंग्लिश में पसंद करेंगे कि हिंदी में, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड? बोथ लैंग्वेज मैम। हिंदी में मैम। हिंदी मैम। हिंदी। इंग्लिश मैम। इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में आई कैन मिला अंडरस्टैंड जुला के बोलेंगे फिर, ठीक है, मिला जुला के बोलेंगे। दिस curriculum is a kind of potent tool in the hand of the teacher that helps to develop moral, social, emotional and ethical development of the student. So we are only concerned with this kind of development that is related to personality development and that is related to a kind of all-round development of the students or the harmonious development of the students. So these next two definitions also explain about this curriculum in comprehensive sense, but the main purpose of all the definition is that the teacher must give emphasis
on the all-round development of the students. That is curriculum. Okay, next slide. वीरेंद्र जी नेक्स्ट स्लाइड पर जी देखिए. अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जो आपस में ओवरलैप करते हैं. हम लोग अक्सर ऐसे बोल देते हैं लेकिन हम समझते नहीं कि हमने ये क्या चीज़ है, हमने यहाँ कौन सा टर्म यूज़ करना है, यहाँ कौन सी शब्दावली यूज़ करनी है, हम नहीं समझ पाते हो लेकिन हम बोलते ज़रूर हैं उसको. से फॉर एग्जांपल हम करिकुलम और सिलेबस, क्या सिलेबस है हम ये तो पूछते हैं, क्या करिकुलम है ये तो हम नहीं पूछते. सिलेबस और करिकुलम में फ़र्क होता है. What is difference between curriculum and syllabus? Curriculum is a comprehensive term that includes all the activities that take place inside the classroom or outside the classroom or in the premises of the college. That comes under the head of curriculum. But the syllabus is concerned with the content that provided to you, that is hands-on, that you have these topics you have to teach in the classroom. तो सिलेबस क्या है कि वो टॉपिक हमारे विषय के जो हमें क्लास में जाके पढ़ाने हैं और पढ़ा के उनका हमको बच्चों को का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर देना है, उनको हमको मास्टर लर्नर बना देना है. तो ये सिलेबस है. सिलेबस में हम कुछ और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात नहीं करते हैं. सिलेबस टर्म का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सिर्फ कंटेंट से होता है, उन बिंदुओं से होता है जो बिंदु हमको वहाँ जाके फोकस करने हैं और जो वहाँ जाके हमें पाठ्य सामग्री पढ़ानी है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड दिस सिलेबस. Similarly, in classroom, we also having few words like curricular activities, co-curricular activities, extracurricular activities. These terms we have also used and frequently used in the classroom also, outside the classroom also. But we should know what is the exact meaning of these three terms. First is curricular activities. Curricular activities is directly concerned to the syllabus. जो हमारा सिलेबस होता है उससे प्रत्यक्ष रूप से हमारी पाठ्यगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं. जैसे कोई टॉपिक है, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक दैट आई हैव टू टीच इन द क्लास. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लान इट. I have to plan it that I will elaborate this topic with the help of this activity or with the help of this experiment. So what it is? It is curricular activities. So the activities that supports our teaching in order to elaborate the topic is known as curricular activities. वो पाठ्यगामी क्रियाएं जो हमारे पढ़ाने में मदद करती हैं और हमें सहायक होती हैं, हमारे टॉपिक को, हमारे विषय को, हमारे उपविषय को व्याख्या करने में हमारी सहायता करें, वो सब पाठ्यगामी क्रियाएं कहलाती हैं. पाठ्यगामी क्रियाएं कहलाती हैं. ठीक है. जैसे किसी विषय को आपको टॉपिक पढ़ाना है, कोई उपविषय आपका है, कोई अब उप विषय को लेके आप परेशान है कैसे पढ़ाऊंगी भाई, मैं इसको अगर मैं क्वेश्चन करूंगी तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, मैं बताऊंगी तो उनकी समझ में नहीं आएगा. तो आपने क्या किया कि आपने उस टॉपिक को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ा कि मैं ऐसा करती हूँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और जो इन्फॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ मैं इसमें इस चित्र को दिखा दूँगी, यहाँ मैं इस डायग्राम को दिखा दूँगी. तो ये क्या है? ये हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्ट हमारे कंटेंट से रिलेटेड है. अब दूसरा क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज़. को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे इसमें हमारे सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे सिलेबस के हमारे पॉइंट्स टॉपिक्स हैं, उनको एलैबोरेट करने में तो हेल्प करती हैं, लेकिन वो किसी तरीके की टीचिंग असिस्टेंस में हेल्प नहीं करती कि टीचर को हेल्प कर रही हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, वो हमारे टॉपिक को और ज़्यादा
एक्सप्लेनेशन करने में या और उस टॉपिक को आसान बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैंने कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने सबसे पूछा आप बताइए क्या हुआ। अगर मैंने किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया या मैंने किसी टॉपिक पे डिबेट की या किसी टॉपिक पे मैंने पैनल डिस्कशन करा और कई एक 3-4 रिसोर्स पर्सन को मैं बुला के लाई, फिर उसी विषय को मैंने पढ़वाया, तो इससे क्या होता है, इससे हमको ये मदद मिलती है कि हमारा टॉपिक और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो पैनल डिस्कशन या एकेडमिक डिस्कशन, वेबिनार्स, डिबेट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं। समझे? तो को करिकुलर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित भी हो सकती हैं और हो सकता है तो हम कोई बाहर के टॉपिक जो करंट टॉपिक्स हैं, G20 समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई और टॉपिक, वो भी हम लेके उस पर पैनल डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर वेबिनार कर सकते हैं। NEP 2020, तो ये क्या है, ये सारे टॉपिक रिलेटेड हमी से हैं, हमी से संबंधित हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, पर ये चाहते हैं कि एक टीचर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ होती है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती है, जो आपने समय समय पर आप भी कराते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस आप भी अपने विद्यालय कॉलेज में कराते हैं, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे विषय से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन बच्चों के जो एकेडमिक सेशन चलता है उस एकेडमिक सेशन में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर लाने के लिए, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देने के लिए हम करते हैं। वेरी नॉइजी। नॉइज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, आवाज आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. आवाज आ रही है। Yes, ma'am. मैं अभी देख के आती हूँ, बाहर कोशिश है, अभी देखते हैं। सो सी, ये जो फील्ड ट्रिप्स हम करते हैं और हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं अपने कॉलेज में 2 अक्टूबर, फिर आवाज़ आ रही है। मैडम आवाज नहीं आ रही। वेट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। मैम ने म्यूट किया है अपने आप को।
हेलो, अब आवाज आ रही है? शोर आ रहा है? जी मैम आ रही है आवाज। अभी भी आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। मैम वो फैन की आवाज है अरे, बैकग्राउंड में। मैं बाहर तक देख के आई हूँ, कोई चीज है ऐसी जो आवाज कर रही है? मैम फैन चल रहा होगा, उसकी आवाज आ रही है। फैन की? अच्छा, हाँ मैम लेट फिर अस कंटिन्यू। लो मैं बंद करूँ, फैन ही बंद कर लेते हैं। अच्छा, ओके ओके, आई एम कंटिन्यू. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज that takes place in the college premises, not directly related to our curriculum or our syllabus, but these activities require to familiarize with the students, because what kind of festivals are being celebrated in different states, and what kind of importance they have for every Indian, specifically those national holidays like Gandhi Jayanti and this 15th August, 26th of January, these all having significance in life of every Indian. So our college students must know that what is its relevance in our life. We celebrate these all, and we try to deliver a lecture in the college by the eminent scholars or the resource person. So these are known as extracurricular activities. जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं महाविद्यालय में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय त्योहारों को इंट्रोड्यूस करने के लिए कराई जाती हैं, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि, ये सब इसीलिए कराई जाती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सके, और एक भारतीय के जीवन में इन राष्ट्रीय त्योहारों का क्या महत्व है ये उनको मालूम होना चाहिए. इसी उद्देश्य के साथ हम इनको कॉलेज में मनाते हैं, और ये सब एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं. ठीक है, तो करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के एलैबोरेशन के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो क्या टर्म्स हैं, उनका क्या मानी है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये सब आपको स्पष्ट हो गया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जी. अब देखिए, अब आप इस साइकिल को देखिए. ये जो साइकिल हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा करिकुलम का चक्र है, पाठ्यक्रम का चक्र है ये, और आप इसी चक्र से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इसी चक्र से गुजरते हैं. अब ये इस चक्र में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें अपने विषय के कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, हमें अपने विषय के कौन से ऐसे पक्ष हैं जो हमें अपने विद्यार्थियों के सामने रखने हैं. जैसे आप मान लीजिए साइंस के टीचर हैं, विज्ञान विषय के टीचर हैं, तो आपका क्या उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को वैज्ञानिक ज्ञान दें, आप बच्चों को वैज्ञानिक समझबूझ पैदा करें, आप बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति पैदा करें, और आप बच्चों में जो नए नए आविष्कार नित्य प्रतिदिन हो रहे हैं, आप उनसे उन्हें अवगत कराएं. यही आपका एक उत्तरदायित्व है, ये आपके उद्देश्य हैं. अब आप विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं. So the educational objectives that you have to achieve through your teaching is the primary stone of any curriculum cycle. If a teacher knows that where I have to go and in what way I have to achieve my objectives in order to introduce the students with the knowledge of the science, with the knowledge of understanding of the science concepts, and developing scientific attitude, scientific interest, and proper scientific organization, these
all comes under the head of objectives. Through different chapters, you try to achieve these objectives. तो सबसे पहला जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उद्देश्यों को बहुत ही अपने मस्तिष्क में एकदम साफ सुथरी तस्वीर उतार लें कि भाई हम ये काम क्यों करने जा रहे हैं. जैसे आप यहाँ पे इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपका मकसद है कि आपको विभिन्न विषयों की जानकारी हो जाएगी, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ जाएगा. इसके साथ साथ आपका जो भी API स्कोर है या जो भी कुछ UGC ने किया है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी. और तो ये सारे उद्देश्य लेके आप यहाँ पे इस कोर्स को कर रहे हैं. ठीक है. इसी तरीके से आप जो पढ़ाते हैं क्लास में तो उसका भी कुछ उद्देश्य होता है, उसका भी कुछ एक मकसद होता है कि मैं वहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ. तो उन मकसद की पूर्ति करने के लिए हम सबसे पहले जो करिकुलम का स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है. ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये कहती है कि हर व्यक्ति, यानी चाहे वो छोटा बच्चा है या वो बहुत बड़ा विद्यार्थी है, सभी के हम जब लर्निंग करते हैं तो 3 हिस्सों में करते हैं. कौन कौन से 3 हिस्सों में करते हैं? पहला हिस्सा ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव डोमेन. दूसरा हिस्सा भावनात्मक है, इफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन. और तीसरा जो हमारा भाग है वो हमारे राइटिंग, रीडिंग, जो हमारे स्किल्स में दिखाई देता है, जो साइकोमोटर डोमेन कहलाता है. तो उन्होंने कहा है कि लर्निंग 3 पक्षों में होती है. फर्स्ट इन द कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इन द अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इन द साइकोमोटर डोमेन. So the learning takes place in 3 domains of any student that I told you right now. One is cognitive, that is related to knowledge or the head. Second is the psychomotor, that is related to our heart and that is related to interest and emotions. And third one is the psychomotor, that is related to skills, that a student knows how to draw the diagram, a student know how to write the sentence, a student know how to perform the experiment, a student know that how to calculate the mathematical equation, a student know how to interpret the terms that are used in the experimentation or somewhere when the topic was going on. So this is known as skills. And if a student or a teacher is able to communicate this particular concept to the others, it means he is perfect in learning. मैम वॉइस कभी कभी नहीं आ पा रही है मैम. वो अरे थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है मैम. fluctuate हो मैम रही है. कैमरा को सही कर लेना. अच्छा, थोड़ा सा अपना भी देखिए, आप अपना डिवाइस को देखिए. मैंने एकदम फिट कर रखा है यहाँ पे, आप अपना डिवाइस देखिए. ठीक हुआ? आ रही है मैम, आ रही है. ठीक है. अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या लिखा हुआ है? कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है कि जो लेक्चर हमें देना है उसका पाठ्य सामग्री क्या है, वो कौन सा ज्ञान है जो हम बच्चों को देने जा रहे हैं. तो कंटेंट को जब हम तैयार करते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किताबों से हटके कंटेंट को तैयार करें. किताबों से हटके मेरा मुराद ये नहीं है कि आप टॉपिक को छोड़ दें और कहीं और पहुंच गई. नहीं, टॉपिक पे तो आपको रहना ही रहना है, लेकिन टॉपिक को मैं कैसे प्रेजेंट करूं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाए, वो कंटेंट रेलिवेंट बन जाए, वो कंटेंट इंटरेस्टिंग बन जाए और स्टूडेंट्स उसको सुन लें. तो ये आपकी कला है, ये आपकी कला है. जैसे कि आपने अपने कमरे को इस तरह से एडजस्ट किया है कि भाई आपको आराम रहे, आप उठें, लाइट जलाएं, आप बाहर चले जाएं और जो भी आपकी कंप्यूटर है वो एक कोने में है, वहाँ पे टेबल रखी है, नोट्स के लिए भी एक नोट पैड रखा है. तो ये आपने क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपने को कंफर्टेबल फील हो. इसी तरीके से टीचिंग में है.
जो कंटेंट किताब में दिया होता है वो बहुत ही वेग होता है और बच्चा उसको नहीं समझ पाता, वो स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाता। फिर वो गूगल ट्राई करता है, गूगल में कहीं कोई मिसकंसेप्शन है वो भी वो पढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपस में पीयर ग्रुप में करते हैं तो इसको भी वो तो ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट अगर मेंटेन करना है तो किसी भी टॉपिक को पहले आसान से शुरू करो और फिर उसको मुश्किल की तरफ ले जाओ। पहले आसान उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके तब उसको मुश्किल की तरफ ले जाओ। यानी व्हाट इज maxims of teaching? The maxim of teaching is always move from simple to complex. दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब वो एग्जाम्पल इतना कॉमन है कि किताब में भी लिखा है और वो गूगल पे भी लिखा है और वो बच्चों को सब जगह तरफ मालूम है। अब उसी एग्जाम्पल को लेके हम क्यों भाई चल रहे हैं? क्या उससे मिलते जुलते दूसरे एग्जाम्पल नहीं है? तो वो हमें बुद्धि दौड़ानी पड़ती है उसके लिए कि भाई मैं और चीज़ इसमें क्या ऐड कर दूं जिससे ये थोड़ा सा और क्रिएटिव हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो व्हाट आई वांट टू से दैट द कंटेंट दैट यू हैव टू डिलीवर इन द क्लासरूम is not limited to the textbook only, but you try to organize in such a way that it becomes a interesting kind of teaching, a creative teaching और वेल ऑर्गेनाइज टीचिंग। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका बच्चा बहुत ही लुत्फ लेगा और बहुत खुश होगा पढ़ के कि हाँ ये टॉपिक मेरे समझ में आया। और जब हम इधर उधर चले जाएंगे अपने टॉपिक से हटके और ठीक से हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर वहाँ पे फिर वही शुरू हो जाएगा कि कल आए हम पढ़ने या ना आए, या गूगल से पढ़ लें या हम पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ लें। तो वहाँ पे बच्चा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है। So, dear participants, what I want to say that content selection and its presentation, it is really a difficult task for a teacher, and a teacher must try to present the content in such an interesting, simple and a kind of creative way that really everyone will appreciate that you are really a good teacher. आप एक अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अब ये प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छा देना चाहते हैं तो जाहिर है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं एकदम क्लास में पहुंच गया और अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया है। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। एटलीस्ट अ वीक आप तैयार होकर रहिए कि आपको इस हफ्ते 2 टॉपिक पढ़ाने हैं या 3 टॉपिक पढ़ाने हैं और उन टॉपिक्स में मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो पहले से जो टीचर तैयार होके जाता है, कंटेंट की तैयारी करके जाता है, उसका लेक्चर इफेक्टिव होता है। और इफेक्टिव लेक्चर जब होता है तो अटेंडेंस वहाँ ज़्यादा हो जाती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आना शुरू हो जाते हैं और आप भी फिर एक अच्छे टीचर की तरह फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू पुट सर्टेन काइंड ऑफ प्रिंसिपल बाय सेलेक्टिंग द कंटेंट, that is principle of interest, principle of variety, principle of relevance, principle of utility। उनकी ज़िंदगी में वो काम भी आए, ऐसा ना हो कि बस पढ़ लिया और इम्तहान में जाके लिखा या ख़त्म हो गई बात। नो, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन जॉब मार्केट, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको इंटरव्यूज़ भी देने होते हैं। इंटरव्यूज़ के हिसाब से भी आपको एग्जाम्पल्स कोट करने चाहिए कि ये हमारा एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो अक्सर बच्चों से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और हमारे लिए कॉमन भी है। तो ऐसा अपना जहन को दौड़ाना है कि वो कवरेज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और पाठ्य पुस्तक तक सीमित भी ना रहें। ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज़ योर इंटेलिजेंस, योर क्रिएटिविटी एंड योर पेंस, योर हार्डवर्क। कितना आप उसमें मेहनत करके वहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ जो है इस साइकिल में वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं इनको अगर हम सरल भाषा में परिभाषित करें
तो हम कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर दैट एक्सपीरियंसेस दैट अ लर्नर रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर। व्यवहार में परिवर्तन आता है जब बच्चा कुछ अनुभव करे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब मैंने दो वर्ड्स आपसे कहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनकी बहुत अहमियत है इस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। प्रत्यक्ष का मतलब है कि आपने जो पढ़ाया सामने दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, ये प्रत्यक्ष है और इसका बहुत असर पड़ेगा। अच्छे से अच्छा लेक्चर है तो बहुत उसको लर्निंग होगी। दूसरा अप्रत्यक्ष शब्द मैंने कहा, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आपका बोलने का अंदाज, वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द स्टूडेंट्स एंड डीलिंग विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। Say for example, if you are not using the word aap, you are not telling the name of the students, just pointing out with your finger, आप खड़े होकर बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो ये माहौल अच्छा नहीं होता है। अगर हम स्टूडेंट से उसका नाम लेके पूछते हैं और उससे जी आप बताइए, और उसको बताने के बाद में अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफाई करा दिया, अगर उसने सही बताया है तो रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव वे में दिया जाता है तो वो असर करता है। पॉजिटिव क्या है? यस, वेरी गुड, यू टोल्ड वेरी फाइन, आपने बहुत अच्छा बताया एग्जाम्पल। तो ये जो रीइंफोर्समेंट हम स्टूडेंट्स को देते हैं और हम स्टूडेंट्स को हौसला अफजाई करते हैं, ये उसका अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं इनकी भी बहुत वैल्यू है स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आपने ये भी सुना होगा कि भाई बड़े शालीन ड्रेस में आप जाइए अपनी कक्षा में, बड़ी शालीनता के साथ आप बच्चों से बोलिए और कोई ऐसा व्यवहार मत करिए जो बच्चे के लिए या आपके स्टूडेंट के को नागवार लगे या अच्छा ना लगे। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा टीचर को बहुत ऑब्जर्व करता है। आपके खड़े होने का अंदाज, आपके कपड़ों का पहनना, आपके बोलने का अंदाज, सभी को एक साथ लेके चलना, ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर की कि आप सबको अपना समझें। ठीक है, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें डायरेक्ट फॉर्म में वो होते हैं जो बच्चा सीख रहा है क्लास में, कंटेंट के ज़रिए जो सीखता है उसको हम डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं, और हमारे बिहेवियर के थ्रू जो बच्चा सीखता है वो इनडायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहलाता है। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का मतलब होता है मेथडोलॉजी, द मेथड दैट यू हैव अडॉप्टेड टू डिलीवर योर कंटेंट। अपनी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए आपने किस शिक्षण विधि का उपयोग किया, वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कहलाती है। जैसे आपने सिर्फ लेक्चर दिया तो ये लेक्चर मेथड कहलाता है, लेकिन ओनली लेक्चरिंग द कंटेंट ये आप खुद भी समझ सकते हैं। बच्चों में एकदम से, हमारे विद्यार्थियों में एकदम से क्या क्योस डेवलप कर देगा कि मैडम तो बोलती चली जा रही हैं, कब तक बोलेंगी पता नहीं। तो ये क्या है, ये क्योस डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ाया, लेक्चर दिया, उसके बाद आपने सवाल जवाब पूछे और तो उसको किसी एग्जाम्पल से जोड़ दिया, बाहरी ज़िंदगी से या किसी पिछली घटना से जोड़ दिया, आगे आने वाले वक्त के बारे में उससे जोड़ा, तो जोड़ के एसोसिएट करके जो हम शिफ्टिंग करते हैं अपने कंटेंट की, ये लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना देता है। बीच बीच में सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ये तो देख सकें कि बच्चा समझ रहा है, सो रहा है या जग रहा है, या अट्रैक्टिव है, अटेंटिव है क्लास में या नहीं है, हमारी क्लास का अट्रैक्शन उसके लिए कितना है। तो अपने आप को बीच बीच में आप असेस करते चलिए और क्लास में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को असेस करते चलिए, तो इससे बच्चा अटेंटिव रहेगा।
और सिर्फ बोलती चली जाएंगी लगातार लगातार, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ करती हैं तब है। दूसरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ये मेथड बहुत कामयाब मेथड है, बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है हमारे इंडियन सिचुएशन में। उसकी वजह ये है कि एक टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करता है और सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं 50 या 55, वो उसको देखते रहते हैं और बीच बीच में आप सवाल पूछते रहते हैं। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द मोस्ट suitable method in Indian situation where class size is large. Okay, so this kind of instructional strategy where we use lecture method, lecture demonstration method, and somewhere we use the project method also. So we should know the modalities of these methods. हमको इन विधियों की क्या तरीक़ा है, क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रीरिक्विजिट है, वो हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि the topic that I am teaching today needs some kind of experiment, but I am without experiment and I am deliver lecture. Say for example, electricity का एक चैप्टर पढ़ा रही थी एक pupil teacher, एंड उसने अपने हाथ से बताया, अपनी उंगलियों को हिला के करंट बह गई, यानी उंगलियां जो हिलाई तो लगा उसने करंट को उंगलियों से बताया कि करंट इस तरह से बह गई और वो बल्ब जलने लगा। तो इज इट अप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट सच काइंड ऑफ कंटेंट इन दैट वे इन द क्लासरूम? नेवर। मैंने उसको कहा कि आप इस तरह से कभी नहीं करेंगी कि आपने बिल्कुल उंगलियां चला दी कि ये करंट बह रही है और वो बल्ब जलने लग गया, जो उसका बल्ब है वो जलने लगा। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग। यू शुड ब्रिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड, शो द circuit, that when we put this wire in the circuit or we put on the button, the bulb glows, and we switched off, then there is no current and the bulb is stopped. There is no lighting from the side of this circuit. So इस तरीके से कुछ उसको एक्सप्लेन करिए कि जो बात तो पूरी बने। तो हम लोगों के अंदर ये क्या है कि कोई देख तो रहा नहीं है और कौन हमसे पूछ रहा है, बस जैसा है वो चल रहा है, चलता चला जा रहा है। हर साल ही तो हम पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ जो है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हर साल हम जो कुछ पढ़ा चुके वो अच्छा पढ़ाया हमने, लेकिन अगली साल हमें कुछ नया करके दिखाना है और एक नया मेथड बनाना है। हर टीचर अगर अपने सब्जेक्ट को, अपने नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझे एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई दिस मेथड, then you will be able to get a new innovation in the teaching learning process. Then we can say that the curriculum that have been imposed or implemented by the authorities is really wonderful curriculum. वो curriculum अच्छा curriculum कहलाता है, because you are the focal point of this curriculum. So all the efforts you have to put there. आपको करना है। साइंस का सब्जेक्ट है तो एक्सपेरिमेंटेशन करना है, मैथ्स का सब्जेक्ट है तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, जो उसके त्रिभुज बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। यू हैव टू डू दिस इन द क्लासरूम इंस्टेड ऑफ ड्राइंग योर फिंगर्स और शोइंग योर फिंगर्स. दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग. सिमिलरली इन केस ऑफ सोशल साइंसेज, व्हाट वी हैव टू नीड, हमको वहाँ पे उन एग्जाम्पल्स को कोट करना है जो उनके दिन प्रतिदिन की घटना, दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं. हम उसको नहीं कभी बताते. ओनली द टेक्स्ट बुक कंटेंट वी आर डिलीवरिंग, क्योंकि हमें कवर करना है, सिलेबस कवर करना है. पिछले साल तो ये आया था पेपर में, ये क्वेश्चन आया था, इस साल ये क्वेश्चन आएगा. तो ये जो हमारी टेंडेंसी है, मुझे हम सबको इससे दूर होकर काम करना पड़ेगा. एंड आई डू होप दैट यू ऑल आर द गुड टीचर्स. You will try to innovate a new method of your subject. And inputs, आपके inputs जितने अच्छे होंगे, करिकुलम उतना ही एनरिच होता चला जाएगा. और जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे आखिर में, तो सब आप ही का नाम लेंगे कि मैडम ने
इसको मॉडिफाई किया था, मैडम ने ही इसको इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी बताई थी. सो रियली वंडरफुल एफर्ट्स she put for the academic session and to enrich the curriculum. ये चीज़ आपको करनी है. क्या आपका सब्जेक्ट चाहता है, क्या आपका टॉपिक चाहता है, what is the nature of the topic, what is the nature of the subject, you must know that and accordingly you apply the instructional strategy. So instructional strategy is related to teaching method, directly related to teaching method. Okay. Now the last step of this is evaluation. Evaluation means the first point I told you, that objectives, that you have to frame objectives where I have to go. Now we have reached at a point where we have to assess that whether the destination is okay or where I wanted to go is really I reached there or somewhere or in mid of the traveling stage or somewhere that I am not reaching to the point where I wanted to go. So जो ये सवाल जवाब आते हैं हमारे जहन में कि यात्रा करने से पहले हमने सोचा था कि हम देहरादून जाएंगे, तो हम वहीं पहुँचे या हम कहीं बीच में फंस गए, या हम अभी भी कुछ घंटे हैं कि हम नहीं यात्रा पूरी कर पा रहे हैं. ये आपको क्लास की प्रोग्रेस से असेस करना है. और यही इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए, हमने उनको मल्टीपल चॉइस भी दिया, हमने उनको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया. तो आई फाउंड दैट द स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल इन राइटिंग द ऐसे टाइप क्वेश्चंस. द रीज़न इज दैट दे आर राइटिंग देयर own words, writing their own ideas, and sometimes they are writing one idea again and again just to fulfill the copies. इसमें बच्चे बहुत माहिर हैं. हमने जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया तो उसमें 10 में से 5 आ रहे हैं, 10 में से 6 आ रहे हैं. क्यों कम आ रहे हैं? कि ये मैडम हम पढ़ नहीं पाए थे, या मैडम आपने आउट ऑफ कोर्स दे दिया. तो इसका सीधा मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है बच्चे को. नॉलेज तो हुई है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है. अंडरस्टैंडिंग जब तक किसी कंटेंट की स्टूडेंट को नहीं है तो इवैल्यूएशन जो है, हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा. और सवाल भी ऐसे बनाने होते हैं कि जो बहुत आसान भी हो, कुछ एक मुश्किल भी हो, कुछ एक मीडियम हो, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है. अच्छी आईक्यू का भी है, एवरेज बच्चा भी है और बिलो एवरेज भी है. सो वी ऑलवेज फाइंड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम. This diversity may be in terms of language, this diversity may be in terms of rural and urban background, may be in terms of religion, gender, etc. So what we have to do, we have to keep in mind that the students of below average and maximum IQ, these all we have to cover in our evaluation. So these all evaluation processes require your vision, your mission, and your creativity sometime also. कि कैसे मैं इसको, how can I check it the classroom figures and the classroom progress of the students. And you must heard the name of NPC, normal probability curve, जो बेल शेप्ड होता है. तो अगर बेल शेप्ड कर्व को आप देखेंगी तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मिडिल पोर्शन में आते हैं. यानी हमारी क्लास की जो तादाद ज़्यादा है वो एवरेज होती है, और एबव एवरेज हैं कुछ स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स बिलो एवरेज होते हैं. ठीक है. तो इस तरीके का हमारा बेल शेप्ड कर्व होता है. तो ज़्यादा अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम IQ के स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स को हमको एनरिच्ड प्रोग्राम देना पड़ता है. एनरिच्ड का मतलब कि जो टॉपिक है उससे हटके थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम उनको दे सकते हैं. लेकिन जो बच्चे हमारे बिलो जा रहे हैं, बिलो IQ जा रहे हैं, एक एवरेज से भी नीचे जा रहे हैं, उनको हमें रिमीडियल क्लासेस देनी पड़ती है. रिमीडियल क्लासेस दैट द टेक्चर अगेन एंड अगेन, दोबारा उनको पढ़ाइए, उनको बुलाइए, उनको समझाइए, तब जाके वो उस मैक्सिमम 100% रिजल्ट हम ले सकते हैं.
और जो एवरेज हमारी पॉपुलेशन है वो जितना आप पढ़ा रही हैं उसके हिसाब से वो खुश हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं, 70, 75, 80 तक उनके नंबर आ जाते हैं। लेकिन 90% के अब जो बच्चे हैं वो हाई IQ के हैं और उनको आपको एनरिच्ड प्रोग्राम देना होगा। अब इवैल्यूएशन के जो तौर तरीक़े हैं वो कई तरीक़े के हैं। से फॉर एग्जांपल हम ऐसे टाइप भी देते हैं, मल्टीपल चॉइस भी देते हैं, और हम फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं, हम वन वर्ड आंसर भी दे देते हैं। तो अब कौन सा नेचर ऑफ आइटम इस टॉपिक के लिए अच्छा रहेगा ये भी आपको तय करना होगा। से फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज़ पे आप आइडियाज़ चाहते हैं, बच्चों के व्यूज़ चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को ऐसे टाइप क्वेश्चन देंगे कि भाई आप लिखिए क्योंकि आई वांट टू नो योर व्यूज़, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पता चले बच्चों में कितनी है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देंगे। और अगर किसी टॉपिक को असेसमेंट के लिए आप ऐसे ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड थोड़ा थोड़ा सभी कर देते हैं, 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, तो 4 और 2 6 और 2 8 और 2 नंबर का वन वर्ड हो गया, तो 10 हो गए। तो अगर हर तरीके की टेक्निक आप इवैल्यूएशन में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने उनको पूरी तरह से असेस कर लिया है। सो करिकुलम का जो इवैल्यूएशन का पार्ट है ये भी बहुत एक्सपर्टीज़ चाहता है। हर टीचर बहुत अच्छा मल्टीपल नहीं बना पाता है। नन ऑफ द एबव, बोथ ऑफ द एबव, ये बहुत वीक आइटम माना जाता है। जहाँ पे हम 4 ऑल्टरनेटिव्स पास करके देते हैं, पास से मतलब जिनके आंसर बहुत मिलते जुलते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, वो अच्छा आइटम माना जाता है। और जहाँ हम लिखते हैं ऑल द एबव एंड नन ऑफ द एबव, वो आइटम अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी पे है, आपकी चतुराई पे है कि आप कितना अच्छा इवैल्यूएशन अपनी क्लास का कर रहे हैं। लेकिन इवैल्यूएशन करने के बाद इफ़ यू वांट दैट द रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड, then you are requested to change your way of method, or the method that you adopted earlier needs certain kind of modification, otherwise जो लास्ट का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा वो अच्छा नहीं रिजल्ट देगा और फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई ये जो है इन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलम इवैल्यूएशन, and it needs separate lecture also, and I do hope that you will get the inputs from other resource person regarding this evaluation also. So now we come to the next designing. चलिए सर आगे बढ़ाइए। डिजाइनिंग पे आइए। मैम पीपीटी तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिए। बढ़ा दिए आपने, प्रिंसिपल बढ़ाए ना। अब आप सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ाइए, सब्जेक्ट आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। यस, और आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट आगे और बढ़ाइए। ये देखिए, ये करिकुलम की जो अप्रोचेज हैं ये 3 अप्रोचेज होती हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, एक होता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, एक होता है एनवायरनमेंट बेस्ड अप्रोच। सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि हमारा कंटेंट जो किताबों में दिया है, जैसे टेक्स्ट बुक होती है ना, जाइए आप सिंह की किताब पढ़ लीजिए, जाइए आप रॉबर्ट की किताब पढ़ लीजिए, ये क्या है, ये सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच कहलाता है। यानी पाठ्य पुस्तक के ज़रिए जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम अप्रोच कहलाती है। और यही अप्रोच फेमिलियर है, हम लोग यही करते हैं। लेकिन अब मॉडल फॉर्म में भी आ रहा है कि आप इसके मॉडल्स बनाइए, और कई एक मॉडल्स भी आ गए हैं जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए हम कंटेंट लिखते हैं। सो दैट देयर इज चेंज इन राइटिंग स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट द subject based approach also always demand that there should be a kind of content. It may be in the form of model, it may be in the form of module, it may be in the form of textbook. Okay. Few advantages are there that नहीं पता, लेकिन क्षमता कर रही है डेमो चल रहा है प्रकोप पे।
मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मोहित क्या सर हुआ है, प्लीज मेरे सर बहुत प्लीज से म्यूट मित्र सर। थे अभी भी। मैं उनके घर गया था, अभी यहाँ से आ रहा हूँ मैं भी। राहुल शर्मा। Participants, please mute your mic. अच्छा, Please mute your mic. Okay, thank you. Thank you. So देखिए, इसमें मैंने जो लिखा है वो लिखा है facts, concepts, generalization, principles, theories are organized. Interrelated content is organized in logical manner, and integrated threads are organized in the form of subject. Integrated threads क्या होते हैं, बताएगा कोई? If anyone knows what is the integrated threads, देखिए, a segment of knowledge is known as integrated threads. So a textbook is collection of several integrated threads. When we collect lot of integrated threads, then we form a piece of knowledge. तब हम ज्ञान का एक टुकड़ा बना पाते हैं जब हम बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके प्रेजेंट करते हैं, समझे? तो इंटीग्रेटेड थ्रेड्स जो हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक यानी सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक पाठ्य पुस्तक के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच. सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी अपने कॉलेज में. इसकी कुछ खूबियाँ हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस इज़ दैट कि विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज we can complete the course, and we have schedule from the college and we move accordingly. And another advantage is that we have flexibility also. If we want to enrich our lecture, we can present, we can take teaching aids, we can take discussions and panel discussions, lecture by the resource person, etc. So we have flexibility also, and we can cover the syllabus in time also. So these are the advantages of this kind of subject based approach. But few disadvantages are also there, that sometimes we become so careless that I have to finish my course and I will take class day after tomorrow, only 35 minutes I will teach and it will be covered almost. So that careless attitude sometimes creates a kind of problem for the students, because instead of coming to the classroom, they start searching Google, and they try to take the notes from the Google. But dear participants, always consider that the importance of teacher is far relevant than any ICT tool and device, and no one can replace the teacher, neither the Google nor the new innovation. So try to accomplish your position in the classroom by providing good lecture and enriched lecture, so that we can say that the subject-based approach is really a wonderful approach, but it needs certain modification. Okay? तो जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है वो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत अच्छा है. लेकिन कभी कभी हम इतने ही लापरवाह हो जाते हैं कि भाई कोर्स ख़त्म करना है, बस कोर्स ख़त्म करते चले जा रहे हैं. ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी नॉलेज हुई, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, हमारा बच्चा जॉब मार्केट के लिए तैयार हो भी पाया नहीं या नहीं हो पाया. क्योंकि आजकल तो हर चीज़ का कंपटीशन है, इंटरव्यूज़ हैं, तो बच्चे को पढ़ाना भी तो उतना ही अच्छा चाहिए जिससे वो वहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन बना सके. तो इस एटीट्यूड के साथ कि हाँ भाई हम अच्छे से अच्छा लेक्चर देंगे, तब तो ये सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच ठीक है. अदरवाइज ये फिर स्टूडेंट्स को कहती है कि चलो गूगल सर्च करो, नोट्स निकालो और पढ़ लेते हैं नोट्स, और चलिए एग्ज़ाम कल होगा, 2 दिन पहले पढ़.
So considering these misconception, the approach lost its dignity and its beauty. But these all components are in our hands. If we want, we can enrich this approach also by providing enriched lectures. Okay. सेकेंड जो अप्रोच है वो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होती है. एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जो होती है, हेलो सुनाई दे रहा है? यस मैम. जी मैम. सुनाई दे रहा है. जी मैम. एक्टिविटी बेस्ड जो अप्रोच होती है वहाँ पे हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? हम कहते हैं बच्चों के सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखिए. बिकॉज द रिसर्चेस सेज दैट इफ अ स्टूडेंट लर्न्स, स्टूडेंट हियर he can only learn 20%. If he is writing, he is learning more. If he is doing, learning 100%. So this approach is certified or a verified approach by the researchers. And no doubt that if students are involved in teaching learning process and able to do something in the classroom, really wonderful to learn, and this kind of learning is permanent, for retaining is for longer time also. So many benefits are there, but the thing is that it demands resources. अगर हमारी laboratories में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तभी हम एक्टिविटी करा पाएंगे. अगर नहीं है तो फिर हमको मजबूर होना पड़ेगा लेक्चर देने के लिए. तो somewhere it is having a lot of positive points, but somewhere it creates chaos in the college because ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, अब नहीं है तो कैसे कराएं. But no doubt activity based approach is the very good approach, and specifically for school student it is good and beneficial for them because वो notorious ज़्यादा होते हैं and they become engaged in other kind of activities in the classroom, so better to engage them. ठीक है. एक प्रॉब्लम और आती है एक्टिविटी बेस्ड में. उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारी जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है वो हमारा कोर्स नहीं कवर करने देती है, क्योंकि हमें तो भाई 20 अप्रैल को कहा गया है कि भाई लास्ट वर्किंग डे है. अब ये हर टॉपिक को मैं एक्टिविटी कराऊं तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. कैसे मैं 20 अप्रैल तक कवर करूं? बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी नहीं आए हैं, वो आने वाले हैं, डिमांड्स में हैं. तो ये सिचुएशन जब होती है तो फिर हमारा कोर्स कंटेंट कवर नहीं हो पाता है. ठीक है. तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच इज गुड अप्रोच, नो डाउट, बट फॉर एवरी टॉपिक देयर इज no negative kind of reactions that we receive from our labs, from our technical staff, from our resources, that we can't do this every time. So which approach is most beneficial? The approach, mixed kind of approach. Mixed kind of approach means कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेक्चर से भी पढ़ा लीजिए, वहाँ पैनल डिस्कशन कर लीजिए, बच्चों का ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सपेरिमेंट भी करिए. ठीक है. तो मिक्स्ड काइंड ऑफ अप्रोच, एक्लेक्टिक काइंड ऑफ अप्रोच इज मोस्ट बेनिफिशियल अप्रोच एज अ करिकुलम डिज़ाइनिंग इज कंसर्न्ड. ठीक है. एक अप्रोच और होती है, उसे हम एनवायरनमेंट बेस्ड अप्रोच कहते हैं. वो अप्रोच बच्चों के लिए होती है जो स्कूल के बच्चे हैं. वो क्या होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस का चैप्टर पढ़ा तो वो जाके उनको पोस्ट ऑफिस का फील्ड ट्रिप कराया, उन्होंने बताया, दिखाया, बिल्कुल लाइव एक्टिविटीज़ उनको दिखाई कि देखिए ऐसे स्टैंप लगता है, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इस तरह से चिट्ठी डाली जाती है हमारे लेटर बॉक्स में, फिर वो पोस्टमैन निकालते हैं, निकालने के बाद सॉर्टिंग होती है,
फिर लोकल वाइज उसमें पिन कोड्स लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये सब दिस ऑल रिक्वायरमेंट बेस्ड जो अप्रोच होती है वो हमारी कैसी अप्रोच है, वो बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे बड़े स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन करिकुलम डिज़ाइनिंग में एनवायरमेंटल अप्रोच भी आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपसे हम डिस्कशन कर लें इस टॉपिक के ऊपर। तो जो भी सवाल आप पूछना चाहें वो पूछें। जी मैम। क्या मैम अब पीपीटी बंद कर दूं? हेलो हेलो मैम लेफ्ट हो गई हैं अभी। चलिए मैं आ गई हूँ, बताइए। हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि पीपीटी अब बंद कर दूं मैं? हाँ हाँ, बंद कर दीजिए। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। जी सवाल आप अपनी जो जनरल प्रॉब्लम्स है आपके क्लासरूम की वो आप रखिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपके मैं रिमार्क्स पढ़ रही हूँ, उसको देख के मैं थैंक यू कह रही हूँ। आप मुझसे सवाल करिए। आप सवाल करिए। मैम वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट में मैम, आई एम डॉक्टर रीना दुबे मैम फ्रॉम मथुरा। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में कौन सा पहले आता है? अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा, यही तो ये होता है ना कि बहुत से जनरल बातें होती हैं जो हमको परेशान कर देती हैं, समझ कि भी हमें पता होना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा होता है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के पर्याय यूज कर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेजरमेंट अलग है और इवैल्यूएशन अलग है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास 12 सेब हैं जिनका वजन 2.5 किलो है या 3 किलो है, ये क्या है? ये मेजरमेंट है। अगर मैंने कहा कि ये बच्चा जो 8वीं क्लास में है, इस बच्चे की हाइट x है, x फीट है, ये मेजरमेंट है। अगर मैंने कहा इस बच्चे के नंबर 10 में से 7 हैं, तो ये मेजरमेंट है। अब इवैल्यूएशन को समझिए। मैंने आपसे कहा ये जो 10 केले हैं जिनका वज़न 2 किलो है, ये बहुत न्यूट्रिटिव हैं और फ्रेश हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ उन दोनों सेंटेंसेस में? उसमें मैंने सिर्फ नंबर बताया था, यहाँ मैंने कुछ रिमार्क्स भी दे दिए जो क्वालिटी को बता रहे हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है अलोंग विद क्वांटिटी, वो क्या है? वो इवैल्यूएशन है। सो मेजरमेंट इज कंसर्न्ड ओनली विद digits, numbers. Evaluation is concerned with digits, numbers along with the quality. अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे के नंबर 10 में से 7 हैं अंग्रेजी में, राइटिंग बहुत अच्छी है, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, अटेंटिव है बच्चा, इंटरेस्ट लेता है, सिंसियर है, पंक्चुअल है, तो ये क्वांटिटी along with the remarks that is concerned with the maybe some kind of modification or some kind of quality, that in all known as evaluation.
आप समझे मेरी बात को? मैम इसमें असेसमेंट भी आ जाता है, तो असेसमेंट को हम किस रूप में लेंगे? असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब ये तीसरा शब्द है जो आपने मेरे सामने प्रस्तुत किया। अभी तक तो मैं मेजरमेंट और इवैल्यूएशन आपने कहा, जी अब असेसमेंट भी आ गया। जी मैम। असेसमेंट का मतलब होता है कि क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया बेस्ड अगर इवैल्यूएशन है तो वो असेसमेंट है। जैसे मैंने कहा आपसे कि 60 से 70 की रेंज के जो बच्चे हैं उनको आप ए दे दीजिए, 70 से 80 के जो रेंज के बच्चे हैं वो ए प्लस कर दीजिए, और 80 से जो 90 तक के बच्चे हैं उनको ए प्लस करिए, और जो उससे 90 से भी अबव हैं उनको आप एक्सीलेंट कर दीजिए, स्टार दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने एक रेंज बना ली, एक क्राइटेरिया बना लिया कि इतने परसेंट पे वाला बच्चा गुड होगा, इतने परसेंट वाला वेरी गुड होगा, इतने परसेंट वाला एवरेज होगा, इतने परसेंट वाला एक्सीलेंट होगा। एक क्राइटेरिया बना दिया। तो आपने असेसमेंट, आपने उसका मेजरमेंट देख लिया कि 10 में से 7 नंबर आए हैं, और आपने उसको रिमार्क दे दिए, इवैल्यूएशन भी हो गया, लेकिन क्राइटेरिया के अंतर्गत वो वेरी गुड में आ रहा है। तो आप क्या कहेंगी कि ही हैज गॉट 70% मार्क्स विद दीज रिमार्क्स। तो ये क्या है? ये असेसमेंट कहलाता है। तो अगर किसी क्राइटेरिया को मानते हुए जब हम देखते हैं, किसी की जांच परख करते हैं, तो वो असेसमेंट में आ जाता है। जैसे आपने नेक में देखा है, नेक में जो है वो कई एक पैरामीटर्स हैं ना, IQAC के जो मेंबर्स होंगे पता होगा, उसमें कई एक पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के तहत हम आपके कॉलेज को असेस किया जाता है, और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, फिर आपको कहा जाता है आप A+ पे हैं, आपका कॉलेज नेक एग्रीडेटेड A+ है, A++ है। तो वो क्या है? वो क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन है, वो असेसमेंट है। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के आधार पर हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का। हाँ, अगर हम क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्राइटेरिया बेस्ड समझ रहे हैं ना आप, कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात कही है, तो ये गुड है, इससे वेरी गुड है, तब वो असेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं। मेजरमेंट में हम सिर्फ डिजिट्स की या नंबर की बात करते हैं, इवैल्यूएशन में हम विदाउट क्राइटेरिया उसकी क्वालिटी और उसकी डिजिट नंबर की भी बात करते हैं, लेकिन असेसमेंट में हम क्वांटिटी प्लस क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, वो हमारा असेसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ मैम, सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, देन फिर असेसमेंट। जी, ठीक है। थैंक यू। और सवाल पूछिए मैम। हमारा एक जी। हाँ, यस, गौरव जी पूछिए। क्वेश्चन है कि आपने कहा कि लर्निंग का मतलब सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, पूछिए गौरव जी। आवाज आ रही है बताइए। मैम, आपने कहा कि लर्निंग का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। इसका मतलब है लर्निंग का मतलब? जी, लर्निंग का मतलब है, सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। जी। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, क्या विशेष प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है या किसी भी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन कितना हुआ ये आपका इवैल्यूएशन बता देगा। नहीं, कितना नहीं, किसी भी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन या किसी स्पेशल विशेष प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर वो थका हुआ होता है तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। नॉर्मली भी परिवर्तन आता है। कि सीखने का मतलब किसी विशेष परिस्थिति से है व्यवहार में परिवर्तन या फिर सामान्य परिस्थिति से है। ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन आता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा ना सीखना जो है, मैंने कहा आपसे कि सीखना जो है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो आपने बड़े अच्छे देखिए, कितने अच्छे सिचुएशन आपने प्रेजेंट कर दी कि
व्यवहार में परिवर्तन आप किसको कह रही हैं? हो सकता है कि व्यवहार में नेगेटिव परिवर्तन आ रहा हो उसके अंदर, या व्यवहार में परिवर्तन उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो असेसमेंट होता है ये हम एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं इसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जब बच्चा पहले दिन क्लास में एंट्री लेता है, उस एंट्री में उसकी क्या नंबर थे, और जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तब उसके क्या नंबर थे, इन दो डिफरेंसेस में, इन 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो लर्निंग है, वो लर्निंग है। अब नेगेटिव क्या है कि वो बातें ज़्यादा करना सीख गया वहाँ बैठ के, या वो फैशन करना वो ज़्यादा सीख गया वहाँ बैठ के, या वो क्लास में आना नहीं चाह रहा है। तो ये व्यवहार परिवर्तन नहीं कहलाता, ये हमारी लर्निंग से कंसर्न नहीं है। ये तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की लर्निंग शुरू हो गई, डी लर्निंग शुरू हो गई। तो उसको हम लर्निंग के क्षेत्र में या लर्निंग के सर्किल में नहीं रखेंगे। हम लर्निंग के सर्किल में क्या रख रहे हैं कि जो फर्स्ट डे हमने उसको ऑब्जर्व किया वो मार्क्स, और जब हमने चैप्टर ख़त्म किया तब कितने मार्क्स आए और उसमें क्या डिफरेंस आया, उसको मैं लर्निंग कहती हूँ। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उसको लर्निंग कहती हूँ। सर जैसे मैम ये पूछ रहे हैं जैसे कि प्रत्येक व्यवहार के परिवर्तन को हम सीखना कहेंगे, तो जैसे इन्होंने कहा ड्रिंक है, चिंता से है, तो ये सारे परिवर्तन लर्निंग के अंतर्गत तो आते नहीं। नहीं, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। सिर्फ प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, न पूर्णता स्थायी होता है और न पूर्णता अस्थायी होता है। बिल्कुल। अगर आपने उसमें अभ्यास नहीं किया या उसको छोड़ दिया तो फिर आपको वो धीरे धीरे चीजें भूलने लगती हैं, फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है, तो वो परिवर्तन फिर ओरिजिनलिटी पे आ जाएगा, 0 पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी कहा जाता है कि पुराना रिवाइज करिए, पुराना रिवाइज करिए। तो हम जो क्लासरूम में लर्निंग है वो हमारी इन 2 सिचुएशन का अंतर, प्रथम दिन और अंतिम दिन, उसके अंतर को हम व्यवहार में परिवर्तन कह रहे हैं। ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन मैम 3 प्रकार का होता है, स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम सीखने के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये भी अच्छा इन्होंने रिमार्क दिया है। स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि जो आपने क्लास में सिखाया है वो लॉन्ग टर्म तक उसके दिमाग में है। नहीं मैम, स्थायी परिवर्तन है परिपक्वता से जो आती है। जैसे हम जन्म के समय पहले छोटे होते हैं, फिर हमारे हाथे पैरों का बढ़ना या पंछियों का उड़ना, पेट से अपने आप पत्तियां निकलना, ये स्थायी परिवर्तन है। वो ग्रोथ का है, वो ग्रोथ। हाँ, परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन को सीखने में नहीं शामिल करते। अस्थायी परिवर्तन है हम चिंता से, भय से, क्रोध से, बीमारी से, औषधियों के सेवन से या नशीले पदार्थों के सेवन से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, और उसको भी हम सीखने में नहीं शामिल करते। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन सीखने का जो स्थायी परिवर्तन है उसका मतलब होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपने उसको दिया और लॉन्ग टर्म तक उसकी रिटेनिंग रही, वो हम उसको लॉन्ग टर्म रिटेनिंग या लॉन्ग टर्म मेमोरी कह देते हैं। उसको हम कह देते हैं कि ये लर्निंग बहुत दिन तक रहेगी, और वो परमानेंट नहीं है, कहीं जाके वो भूल भी सकता है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लर्निंग। ठीक है, तो परिवर्तन वो हुआ है और वो काफ़ी दिन तक उसके व्यवहार में रहेगा। जो कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह है वो यही कहता है कि जो हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बने हुए हैं, इनको अगर इतना प्रैक्टिस कर दिया गया है तो ये आगे जाकर भी वही उसी तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसको उन्होंने परमानेंट स्किल लर्निंग, मैम स्किल लर्निंग जो है जैसे स्विमिंग है या साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, राइडिंग है, तो ये लर्निंग तो मैम लॉन्ग टर्म लर्निंग है। लॉन्ग टर्म लर्निंग इसलिए है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत होती है। ड्राइविंग वगैरह अगर आप रोज कर रही हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको करती चली जाएंगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इट कीप्स द कंटेंट फॉर लॉन्गर टाइम।
अगर बहुत दिन तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया तो धीरे धीरे वो भूल भी जाएगा। वो फॉरगेटिंग शुरू हो जाएगी, उसको डीकंडीशनिंग कहने लगते हैं। जो कंडीशनर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है उसको डीकंडीशनिंग कहने लगते हैं। और फिर से वो अगर उसी अवस्था में लाना चाहते हैं तो कहते हैं आप दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, उसी प्रैक्टिस करिए, माहौल को बना लीजिए तो आप फिर से रिटेन कर लेंगी। ठीक है, चलिए। और मैम लंबे समय तक कोई चीज याद कैसे रखी जाती है? लंबे समय तक जी जी मैम, बहुत लंबे समय तक जैसे किसी चीज को मेमोरी में फीड कर रखें तो कैसे, उसका कोई मेथड है क्या, किस तरीके से उसको याद रख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई पैटर्न है। हाँ, देखिए इसके लिए भी बहुत सी ट्रिक्स बताई गई है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को कहते हैं कि आप किसी चीज़ को पढ़ा रही हैं तो उसको एसोसिएट कर दीजिए, किसी चीज़ से एसोसिएट करके पढ़ा दीजिए। और अब तो चीज़ें ही इतनी, स्वयं जैसे SWAYM, तो स्वयं तो अपने आप में पूरा वर्ड थोड़ी है, स्वयं का तो अपना एक पूरा शब्द है। ये इसी तरीके से जो कोडिंग वर्ड्स चल गए हैं उनका भी अपना अपना पूरा वर्ड्स है। तो अगर छोटा करके आप ABCD के फॉर्म में किसी को याद कर लेते हैं या किसी को एसोसिएट करके याद कर लेते हैं तो ये जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहलाती है और लॉन्ग टर्म तक ही याद रहती है। जी और बोलिए। Any question, participants? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। थैंक यू मैम। नो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Nice interaction with you.